یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اکثر میڈیا کے ٹکرز کے اندر نا، بلڈرز مافیا. جی کس کے بارے میں کہا جا رہا ہوتا ہے؟ آپ ہوتے ہیں کوئی اور ہوتا ہے؟ بیسیکلی بلڈر مافیا انلیگل کنسٹرکشن ہو رہی ہے اس شہر میں، اتنی اور بڑی تعداد میں؟ جتنی ہم کرتے ہیں ہم سے زیادہ انلیگل کنسٹرکشن ہوتی ہے، اس کے بعد جتنا ہم کر رہے ہیں اس سے زیادہ انلیگل کنسٹرکشن بہت بڑی بنائیں. سسٹم کیا ہے؟ بڑے کچھ دنوں قبل بھی جو ہے بڑا اس میں زور و شور رہا. ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اردو نے بھی آپ کے دفتر میں آ کے پریس کانفرنس کی ہے. کیا یہ سسٹم تھوڑا سا بتائیں؟ لوگ بھی نہیں ہوتے یار، 50-60 لوگ بھی نہیں ہوتے، اور صرف کنٹرولنگ ہوتی ہے جب آپ کی زمینوں پہ قبضہ ہوتا ہے. آپ کی جو اتھارٹیز ہیں، آپ کی بیوروکریسیز ہیں، آپ کی اپروولز ہیں، آپ اپنی لینڈ نہیں سنبھال سکتے. اپنی ریکارڈ آف رائٹ گورنمنٹ کے پاس ہے، اس میں فورجری کر دی جاتی ہے. تو آپ کی سارے پاکستان کی جتنی بھی بیسس کمیونٹی ہے وہ پازیٹیو سینٹیمنٹ پہ نہیں جا رہی. نہ پالیسیز ہیں، نہ لانگ ٹرم کوئی ڈیسیشن ہے، نہ کوئی ایسی سوچ ہے. اس لیے کہ ہماری سوچ صرف یہ ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف سے کیسے پیسے مل جائیں. سولوشن کا پتہ ہے تو اوپر جو سرکار میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں نے ایڈوائسز بھی کر رکھی ہیں، سجیسٹ بھی کر رکھی ہیں، تو ان کے ذہن میں یہ بات کیوں نہیں آتی؟ کیا مسئلہ ہے؟ بادام کھانے کا مشورہ دیں گے یا کوئی اور معاملہ؟ السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی رضا ہے اور آپ دیکھنے والا پاکستان ڈیجیٹل. اور آج میں انتہائی اہم شخصیت کے ساتھ موجود ہوں. نام ان کا محسن شقانی ہے. روح رواں کہلائے جاتے ہیں یہ آباد ایسوسیشن بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آف پاکستان. میں ان سے پوچھوں گا کہ ریئل اسٹیٹ کو نا ریاست اور کسی بھی ملک کا ایک ریل کی ہڈی، ایک بیک بون کہا جاتا ہے. محسن شقانی صاحب، اپنی بیک بون کا حال بتائیں ذرا، کیسی ہے؟ میرے خیال سے بڑی بری کنڈیشن میں سمجھتا ہوں کہ بیسیکلی جب کنٹری کا سینٹیمنٹ نیگیٹو ہوتا ہے تو ساری چیزیں، مطلب آپ کی جو لائن آف ایکشن ہوتا ہے وہ سب جگہ نیگیٹو سوچ آ جاتی ہے. اور 1.5 سال ہو گیا میں سمجھ رہا ہوں عمران خان کے جو لاسٹ 6 مہینے اور اس کے آنے کے بعد ایسی کنڈیشن ہوئی ہے کہ ڈالر کا جو ڈی ویلیوشن ہونا ہے وہ 40% پلس جو ڈی ویلیوشن ہوا ہے، تو ہر چیز کی پرائس ڈبل ہو گئی ہے. اور ابھی بھی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی کہ وہ کہاں رکے گی. اس لیے کہ آپ کو کہیں پتہ ہونا کہ ایک لائن ڈرا ہو گئی ہے، اب اکانومی اس طرح چلے گی، لیکن آج تک وہ چیزیں نہیں. پولیٹیکل بھی آپ کو پتہ ہے کیا کنڈیشنز ہیں، تو وہ بھی کہیں سیٹل نہیں ہو رہی. الیکشن ہونے ہیں، الیکشن کے بعد کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، تو آنے والا وقت بھی اتنا اچھا 6 مہینے نظر نہیں آ رہا، اس لیے کہ ڈیسیشن نہیں ہوتے. تو وہ ساری چیزیں کو جب آپ دیتے ہیں تو آپ کی سارے پاکستان کی جتنے بھی بزنس کمیونٹی ہے وہ پازیٹیو سینٹیمنٹ پہ نہیں جا رہی. نہ پالیسیز ہیں، نہ لانگ ٹرم کوئی ڈیسیشن ہے، نہ کوئی ایسی سوچ ہے. اس لیے کہ ہماری سوچ صرف یہ ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف سے کیسے پیسے مل جائیں. اس کے لیے ہم ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہیں. تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر پاتے، اور آپ جو آپ کی بزنس کمیونٹی اس کو سیکیور نہیں کر پاتی. اور جب بزنس کمیونٹی سیکیور نہیں ہوگی تو ڈیفالٹ ہو جائے گی، اور ڈیفالٹ ہوگی تو کہیں نہ کہیں باہر بھاگے گی. تو یہ اچھا کنڈیشنز ہیں. محسن صاحب، یہ بتائیں نا، دنیا بھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں، جو تاجر برادری ہے، ان کو وی آئی پیز کا درجہ دیا جاتا ہے. آپ کو کتنا اس طرح رکھا جاتا ہے؟ کتنا وی آئی پی قرار دیا جاتا ہے؟ ذرا اس کے اوپر بھی کامنٹ بتائیں. آپ جیسے لوگ، تاجر برادری جو ہے، اس کو کتنا پروٹوکول ملتا ہے ریاست کی طرف سے، ادھر حکومت کی طرف سے؟ تھوڑا اس کے اوپر بھی کامنٹ کریں. مسئلے تو نہیں آتے؟ میرے خیال سے بہت مسائل ہوتے ہیں. دیکھیں وی آئی پی تو کیا، ایک نارمل کنڈیشن بھی مل جائے تو ہم کہتے ہیں بہت اچھا ہے. ہم جہاں بزنس کرتے ہیں وہاں بڑے مسائلز ہوتے ہیں. آپ کی جو اتھارٹیز ہیں، آپ کی بیوروکریسیز ہیں، آپ کی اپروولز ہیں، آپ اپنی لینڈ نہیں سنبھال سکتے، اپنی زمین، اپنی چیزوں کو سیکیور نہیں کر سکتے. آپ کے جتنے ریکارڈ آف رائٹ ہے گورنمنٹ کے پاس ہے اس میں فورجری کر دی جاتی ہے. تو بہت سارے اتنے سارے ایشوز آتے ہیں. اور جوڈیشری اس کے بعد آخر جو رہ جاتا ہے ان کے بھی کوئی نہ کوئی ایسے ایشوز آ جاتے ہیں جو بنی ہوئی بلڈنگوں کو یا پرسنلائز ایشوز لے کے بلڈنگیں توڑ دی جاتی ہے، ایسا کچھ کر دیا جاتا ہے. لوگوں کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے، ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے. وہ پیسے بھیجتے نہیں، وہ انویسٹمنٹس نہیں کرتے. میں سمجھتا ہوں بہت بڑا ایک چنک ہے. اگر ہم اپنی ریئل اسٹیٹ پہ کام کریں تو $5 بلین ہم انٹرنیشنلی صرف ریئل اسٹیٹ میں ڈال سکتے ہیں آفیشیل. یہ ہم نے گورنمنٹ کو بھی کہا ہے کہ اگر ہم کوئی ایسی پالیسیز بنائیں جو لانگ ٹرم ہو، جس میں لوگوں کو اعتماد ہو اور ان کا سرمایہ نہ ڈوبے اور ان کو کوئی اٹریکشن ہو، تو یہ ہمارے لیے، جو ہم ڈالر کے لیے آج ہم رو رہے ہیں، تو یہ چیزوں کو ہمیں کور کرنے کے لیے ہر سال کا کوئی ٹارگٹ ہونا چاہیے. محسن شقانی صاحب، میں یہ جاننا چاہتا ہوں، آپ جیسا ایک تاجر بیٹھ کے یہ سوچ سکتا ہے، اس کو سولوشن کا پتہ ہے، تو اوپر جو سرکار میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں نے ایڈوائسز بھی کر رکھی ہیں، سجیسٹ بھی کر رکھی ہیں،
تو ان کے ذہن میں یہ بات کیوں نہیں آتی؟ کیا مسئلہ ہے؟ بادام کھانے کا مشورہ دیں گے یا کوئی اور معاملہ ہے؟ میرے خیال سے جو بھی جہاں بیٹھا ہوا ہے، جب ہم ملاقات کرتے ہیں ان کی بھی چاہت ہوتی ہے، لیکن جب ان پہ پریشرز ہوتے ہیں انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ کے، اور ان کو جب ایگریمنٹس کرنے ہوتے ہیں اور جب کنڈیشن ڈیفالٹ کی باتیں ہوتی ہے، تو پھر وہ ہر وہ چیز کرتے ہیں جس سے اپنی کنٹری کے لوگ سیف نہیں ہوتے۔ اچھا محسن شکانی صاحب، یہ بھی تو بتائیں سسٹم کیا ہے؟ بڑے کچھ دنوں قبل بھی جو ہے بڑا اس میں زور و شور رہا، ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید اعلیٰ موڈو نے بھی آپ کے دفتر میں آ کے پریس کانفرنس کی ہے، کیا یہ سسٹم تھوڑا سا بتائیں تو؟ دیکھیں، یہ بیسیکلی کچھ لوگوں کا مجمع ہوتا ہے۔ کتنے ہوں گے اس کے اندر، سسٹم کے اندر کوئی کتنے لوگ ہوں گے؟ زیادہ 100 لوگ 200؟ 100 لوگ بھی نہیں ہوتے یار، 50-60 لوگ بھی نہیں ہوتے، اور صرف کنٹرولنگ ہوتی ہے جب آپ کی زمینوں پہ قبضہ ہوتا ہے، جب آپ ایس ایس پی کو پاس جاتے ہیں، جب ایس ایچ او آ کے وہ زمین گورنمنٹ اینٹی انکروچمنٹ اور ایس ایچ او آ کے آپ کی زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں کہ اب آپ کے کاغذ صحیح نہیں ہے، دوسرے کے کاغذ ہے، اور پھر آپ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور ایس ایچ او مطلب زمین آپ کی ہوتی ہے، کھاتا آپ کا ہوتا ہے، سرکاری، اس کے باوجود بھی یہ چیزیں ہو اس کے جاتی ہیں؟ باوجود بھی یہ چیزیں ہو جاتی ہے، اس کے باوجود بھی 2 نمبر کھاتے وہاں پہ ڈپلیکیشنز ہوتی ہیں، اور پھر انوالومنٹس آ جاتا ہے ایسے لوگوں کا کہ وہ ساری مشینری خاموش ہو جاتی ہے، جن کا کام ہے ہمیں پروٹیکشن دینا، وہ ہمارے ہی اگینسٹ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہماری چیزوں کو چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم ہائی کورٹ جاتے ہیں، پھر وہاں سے اسٹے لاتے ہیں، پھر ہم اداروں کے پاس جاتے ہیں، پھر ہم سب جتنے بھی محکمے ہیں ان کو اپلیکیشن لکھتے ہیں، جس میں چیف منسٹر صاحب ہے، ہم ڈی جی رینجر کو لکھتے ہیں، ہم باقی ایجنسیوں کو لکھتے ہیں، سب جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں، حساس ادارے، ان کو بھی میں بھی یہی بتاتے سوچ ہیں۔ رہا تھا کہ پچھلی دفعہ آپ نے لیٹرز لکھ دی حساس ادارے، یہ تو کام حکومت کا ہے، حکومت نے نپٹا لینا ہے، وزیر اعلیٰ سے مراد علی شاہ منٹوں میں نپٹا سکتے ہیں، آپ کو حساس ادارے تک جانا پڑا خطوط لکھ کے کہ ہماری بات سنو؟ دیکھیں، ہمارے پاس کوئی راستے نہیں ہوتے، ہم لوگ کہیں جتنے بھی ادارے ہیں وہ سب ہمارے ادارے ہیں، اگر ہم ان کو نہیں بتائیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ حالات ہو رہے ہیں اور یہ سچویشن ہو رہی ہے، تو یہ بزنس کمیونٹی بھاگ جائے گی یہاں سے کام چھوڑ کے، لاکھوں لوگوں کی روزگار ختم ہو رہے محسن ہیں۔ صاحب ایک اور بات بتائیے گا، ذرائع میرے نا اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ترکی میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں بڑی اہم جگہوں پہ، آپ کے بلڈرز ہیں، آپ کے نمائندے ہیں، کیا سرمایہ یہاں سے منتقل کرنے کا کوئی ارادہ بن رہا ہے کیا؟ دیکھیں، ہر آدمی جب انسیکیور ہوتا ہے تو فلائٹ پہلے کیپٹل تصدیق تو کر دیں، ملاقاتیں چل رہی ہیں کہ دنیا دنیا ترکی کے اور دیگر دنیا بھر ممالک میں؟ میں ملاقاتیں چل رہی ہے، ہمارے یہاں کینیڈا سے خود میئر آئے تھے، پیٹرک یہاں آئے تھے، یہاں پاکستان میں انہوں نے ملاقات کی، یو ای سے لوگ آئے تھے، یو کے سے کچھ لوگ آئے تھے، ٹرکی کا پورا ڈیلیگیشن آیا تھا، ہم لوگ گئے تھے۔ ہر آدمی اپنے آپ کو سروائیول تو دیکھے گا جب وہ مر رہا ہوگا، مطلب ڈوب بلڈر رہا آج ہوگا۔ کی تاریخ میں سروائیول ممکن بنانے میں لگا ہوا ہے، میں یہ سمجھوں؟ بالکل، آپ یہ سمجھے اس کا پروفٹ تو سروائیول، چھوڑ دیں۔ پروفٹ کو تو چھوڑ دیں، ڈیفالٹ نہ ہو جائے، وہ بھاگ نہ جائے، کاسٹ آف کنسٹرکشن ڈبل ہو گئی ہے، وہ چیزیں بنا نہیں پا رہا، پریشر اس کے پیچھے بھی انویسٹر ہوتے ہیں، وہ انویسٹر اس کو پریشرائز کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارے پیسے اور پبلک کے پیسے اس نے دیے ہوئے، اگر پروجیکٹ نہیں ہوں گے تو ڈیفالٹ ہو جائے گا، گورنمنٹ جب بیٹھے گی نہیں، جب کاسٹ آف کنسٹرکشن ڈبل ہو جائے گی تو کوئی نہ کوئی وایا راستہ نکالنا پڑے گا گورنمنٹ کو بیٹھ کے کہ اس کی پرائس کو کس طرح ایڈجسٹ کی جائے تاکہ وہ پروجیکٹ بھی کمپلیٹ ہو جائے، ان لوگوں کا سرمایہ بھی نہ ڈوبے جن لوگوں نے پیسے دیے ہوئے ہیں، اور یہ ہماری جو لوگ ہیں وہ بھی سیف ہو جائیں۔ لوہاروں کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں ہاتھ دھو کے آپ لوگ؟ ایسا کیا کر دیا؟ احتجاج کی کال دے رہے ہیں، کبھی کسی کے پاس جا رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، لوہاروں نے کیا بگاڑ دیا آپ کا؟ کنہوں نے؟ لوہاروں نے، اچھا، لوہے کے اسٹیل والوں نے، اسٹیل والوں کا بیسیکلی ایک کارٹلائزیشن بنتا ہے۔ دیکھیں، یہ 3,40,000 روپے پہ اسٹیل ہمارا چلا گیا تھا ٹن، ٹن، یہ 1.5 لاکھ روپے ٹن سے شروع ہوا ہے، 1.5 سال میں 3 لاکھ، 1.5 سال میں 3,40,000 پہ چلا 1.5 گیا، لاکھ سے؟ 1.5 لاکھ سے۔ اس کے بعد ہم نے وہ کارٹلائزیشن کی تھوڑا ورک آؤٹ کیا، ہم نے ایک اپنا گروپ بنایا اور ہم نے کوشش کی کہ ہم ایک کوانٹٹی لیں گے، انڈیویجول آدمی نہیں لے گا، تو پھر جا کے 2,60,000 70,000 پہ ہمیں ملا۔ تو یہ کارٹلائزیشن جب بن جاتا ہے تو پرائس 3,40 اور ابھی ہمیں تقریباً 270 260 کا مل سر رہا ہے۔ یہ بڑھ کیسے رہا ہے محسن صاحب؟ اتنی 1.5 سال میں اس لیول پہ چلی جائیں گی؟ عام آدمی تو گھر کا تصور بھول جائے اس کا مطلب۔ یار، آپ یہ سمجھے کہ آپ کی کرنسی اس 1.5 سال میں 40% ڈاؤن ہو گئی، اسٹیل آپ کا باہر سے امپورٹ ہو رہا ہے اسکریپ، وہ کیا کریں گے؟ چیزیں آپ کی جو لوکل ہماری مائننگ ہے وہ ہم یوز نہیں کر رہے ہیں، ہم اسکریپ منگاتے ہیں، ہماری مائننگ سے جو نکالتے ہیں ہم باہر بھیج دیتے ہیں، ہم اس پہ کام نہیں کر رہے، ہمارے انڈسٹری کوئی مائننگ والی جو اسٹیل مل چلتی تھی وہ ہم نے بند کر دی، اس کے بعد کچھ انڈسٹری لگی لیکن وہ بھی نہیں چلی۔ اگر آج اسٹیل مل ہوتی اور اپنے
बेहतरीन अंदाज में काम कर रही होती तो कितना बिल्डर्स को फायदा हो रहा होता। पूरे मुल्क को फ़ायदा हो रहा होता, इस मुल्क को फ़ायदा हो रहा होता। आज वो प्राइस आपकी कोई पौने 2 लाख रुपए में आज स्टील मिल रहा होता आपको मार्केट में। अगर आपकी स्टील मिल और आपकी माइनिंग होती तो आपका रॉ मटेरियल आपका होता, आपके हज़ारों, करोड़ों, अरबों डॉलर नहीं जाते इन स्क्रैप में, तो आपको मुल्क को फ़ायदा होता। हमारे पास रॉ मटेरियल होते हुए, माइनिंग होते हुए हम बाहर से मँगा रहे हैं। तो हमने तो डिज़ाइन ही नहीं कर रहे, हम ये सोच ही नहीं रहे कि हमें वो इंडस्ट्रीज़ जो हमारे मुल्क में ज़रूरी है, उसको हम यहीं पे चीज़ें, जब माइनिंग आपके पास है, ओर्स आपके पास है, तो आप उसको काम नहीं कर रहे। ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अक्सर मीडिया के टिकर्स के अंदर ना, बिल्डर्स माफिया। ये किसके बारे में कहा जा रहा होता है? आप होते हैं या कोई और होता है? बेसिकली बिल्डर माफिया, इल्लीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है इस शहर में, कितनी और बड़ी तादाद में? जितनी हम करते हैं हमसे ज़्यादा इल्लीगल कंस्ट्रक्शन होती है। जो एक हम सेकंड रुक लोग जाइए, जितनी आप एक नॉर्मल एक बिल्डिंग बना ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर काम कर सारे रहा है, टैक्सेस वैक्सेस देने के देने बाद, के बाद जितना हम कर रहे हैं उससे ज़्यादा इल्लीगल कंस्ट्रक्शन बहुत शहर बड़ी में हो रहा बात है। कह दी है। मोहसिन शखानी कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, इनका एक स्टेक है इस पूरे पाकिस्तान के अंदर, रियल एस्टेट के रूए रवाज समझे जाते हैं, इसलिए मैं इनसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। इनके एक एक जुमले जो हैं, स्टेटमेंट है जो कि नेशनल लेवल पे जो है उसको एक रिकॉर्ड का हिस्सा भी समझा जाएगा, और ना सिर्फ रिकॉर्ड का हिस्सा समझा जाएगा बल्कि उसकी एक अहमियत है। इसीलिए ये गुफ्तगू है, ये सिर्फ महज एक जुमले नहीं दो अफराद के, बल्कि एक बहुत बड़ा मसला है जिसके ऊपर आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं। तो मोहसिन साहब, तो कंट्रोल कैसे होंगे? क्या इतनी बड़ी इमारत इल्लीगल बन रही हो नजर नहीं आ रही? इतने 36 इदारे तनख्वाह लेते हैं आवाम से। ये 36 इदारों के आशीर्वाद में बन रही है, ये बन ही नहीं सकती। अगर बिल्डिंग कंट्रोल चाहे तो एक दीवार भी नहीं बन सकती इस शहर में, और वो अगर ना चाहे और इदारे इस तरीके से हो जाए कि कोई पूछने वाला ना हो, तो ये इश्यूज बढ़ते देखिए जाएंगे। भाई, मैं समझ मैं रहा हूँ इससे सिर्फ ये नहीं है, लीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है तबाह बर्बाद हो रहा है। आपका। ना उन लोगों को उस बिल्डिंग की इतनी स्ट्रेंथ होती है, हम डिजाइन करते हैं जोन 2B पे, सर लियारी में गिर मतलब रही हैं बिल्डिंगें। मैं कह रहा हूँ कि बिल्डिंग का कोड्स होते हैं, बिल्डिंग की स्ट्रेंथ होती है, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर इंजीनियर होता है, ही इज द रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पे जो बिल्डिंग बन रही है वो 6 पाउंड पे, 5 पाउंड पे डिजाइन होती है। हमारी बिल्डिंग जो डिजाइन होती है वो 15 पाउंड पर स्क्वायर फीट डिजाइन होती है। ओ माय इतना गॉड। बड़ा फर्क होता है। अल्लाह ना करे कोई ऐसा हादसा हुआ तो हजारों लोग, लाखों लोगों का हादसा हो जाएगा। उस दिन हम कहीं नहीं खड़े होंगे। हम हमेशा गवर्नमेंट को कहते हैं कि इन बिल्डिंगों की स्ट्रेंथ नहीं है, ये लोगों की जानों को खतरा है। ना उसमें पार्किंग है, ना उसके स्टेयर में ऐसी कोई कंडीशन है कि मरने वाले को भी नहीं उतार सकते, ना वो वेंटिलेशन है। तो ये सारी चीजें डेंजरस है शहर के लिए। तो खुदारा हम सब का ये काम है, आपका हमारा, कि हम ये बात करें और उनको बताएं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी चीफ एग्जीक्यूटिव की होती है, चीफ सेक्रेटरीज की होती है, चीफ मिनिस्टर्स की होती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। और अब तो मेयर कराची जो हैं वो मुर्तज़ा वहाब साहब हैं, दबंग आदमी हैं, चीज़ों को समझते हैं, कराची का दर्द भी दिखाई देते हैं कि उनको महसूस होता है। साथ ही अब उनके पास तमाम इख्तियारात हैं, क्योंकि वो सूबे के एक नुमाइंदे हैं और एक अहम पोजीशन पे। उम्मीद करेंगे कि इस शहर के अंदर जो इल्लीगल तामीरात हो रही हैं और जो मसाइल हैं उसके ऊपर हम गुफ्तगू जारी किए हुए हैं, मज़ीद बात करेंगे। इस वक्त बिल्डर्स शिकायत लेकर आ रहे हैं, क्या-क्या शिकायत कर रहे हैं आपके पास जो आबाद के मेंबर हैं बिलखुसूस? क्यों क्यों देखिए इतने मसले हो गए, होना शुरू हो गए एकदम से? ये 1.5-2 साल की बात है। देखिए बड़ा खुश थे। हमने लास्ट 2-3 महीने पहले बहुत सारा एक कैंपेन पूरी डिज़ाइन की, सब लोगों को बताया क्या-क्या प्रॉब्लम्स है, एक्शन भी हुए, चीज़ें भी हुई, रिजल्ट्स भी आए। आपने देखा आईजी साहब ने भी दिया, अपने कराची के हमारे सीसीपीओ जावेद ओडो साहब ने भी एक्शन लिया। तो ये एक्शन लेने से 3-4-5 महीने बेहतर गुजर गए, और ये एक्टिविटी उस वक़्त बेहतर हो गई थी जो 3-4 महीने एक्शन लिया। जैसे ही थोड़ा-सा काम कूल डाउन हो जाती है गवर्नमेंट, जो शोर-शराबा कम होता है, फिर से वो अब आपके कितने मेंबर हैं मोहसिन भाई? ये मसाइल किस तरह हल होंगे? देखिए आईएमएफ के तो ब देखें ठीक है, शराइत लगती रहेंगी, आइंदा भी इनको आईएमएफ के पास जाना है। कोई ऐसा सॉल्यूशन बताएँ मुझे, देखने वाले देखें, मैं इसको यकीनी तौर पे आम जगहों पे शेयर करता हूँ। मुझे सिर्फ ये बताएँ कि इसका सॉल्यूशन बताएँ। भई आईएमएफ की शराइत फिर लगेंगी, बट उसका कोई प्लान बी हो, प्लान सी हो, प्लान डी हो, कोई ना कोई रास्ता तो निकालें कि देखिए हमें इस वक़्त ऐसे कोई लीडर चाहिए जो इन चीज़ों को फ़ेस कर सके, और जो भी एक गवर्नमेंट आए जो लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट हो, जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ डिज़ाइन करे। इसलिए कि अभी तक शॉर्ट टर्म चीज़ें चल रही हैं आपके सामने कि लॉन्ग टर्म तो डिक्टेटरशिप ही आती है। देखिए कुछ भी आए, वो आना चाहिए ताकि लॉन्ग टर्म जब पॉलिसीज़ होगी, वो कोई भी हो, ताकि ये मुल्क के लिए हम सोच सकें कि हमें इसको लेके कहाँ जाना है। देखिए जितने भी हमारे
सिक इंडस्ट्रीज़ हैं, सिक इदारे हैं जो हर साल अरबों रुपए का लॉसेस कर रहे हैं, उनको प्राइवेटाइज़ कर देना चाहिए। जितनी हमारी पॉलिसीज़ है उसको एक 20 साल के लिए एक डिज़ाइन करना चाहिए कि हमें क्या-क्या इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत है इस मुल्क में, ताकि हम लोकली उस इंडस्ट्रीज़ को लगाएँ, उसको हमें टैक्स फ्री करने चाहिए जो इंडस्ट्रीज़ है नहीं यहाँ पे, ताकि हमें इम्पोर्ट ख़त्म हो। हमें उन पॉलिसीज़ पे लेके जाना चाहिए कि हमें एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाना है हमारे, और किस तरीके से हमारा बैलेंस जो डेफ़िसिट आता है वो नहीं हो। डॉलर जो हमारा एक्सपोर्ट होता है और हमारा रेमिटेंस आता है उतना ही इम्पोर्ट हो, ताकि हमारा ये ना हो और हमें अपने कर्ज़े जो वापस करने उसका डिज़ाइन क्या हो, मज़ीद कर्ज़े लेके कर्ज़े वापस करने तो हम वहीं के वहीं डूबते ही जाएँगे, अल्टीमेटली डूब जाएँगे। तो कहीं न कहीं एक पॉलिसीज़ 10 साल, 20 साल की कि ये इस कंडीशन है, हमें माइनिंग से ये गोल्ड निकालना है, हमारे पास ये वसाइल है, हमारे पास ये कोल है, हमें इसको किस तरीके से करना है। जब तक हम ऐसे कोई डिज़ाइन नहीं करेंगे इस कंट्री को, ये मैं समझता हूँ सोने जैसा कंट्री है, ये फिज़िबल प्रोजेक्ट है जिसकी कनेक्टिविटी बाय रोड कनेक्टिविटी हाल्फ ऑफ द वर्ल्ड है। 8 बिलियन पॉपुलेशन में 4 बिलियन आपके रोड कनेक्टिविटी है। इंडिया, चाइना, ईरान, अफ़गानिस्तान तो सी है इस कंट्री। तो आपके पास तो ऐसी जगह है अल्लाह ने दी है और इतनी माइनिंग दी है, और एग्रीकल्चर को आपको अपनी यील्ड को बढ़ाना है। हम 10-20% पे काम कर रहे हैं दुनिया के मुकाबले में। अगर हम 40% करेंगे तो हमारी इकोनॉमी चेंज हो जाएगी। हमें किन चीज़ों पे काम करना है ताकि इस मुल्क को आगे बढ़ाएँ? कंस्ट्रक्शन में इंफ्रास्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना है। हमारे पास तो डे टू डे बेसिस पे काम हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। हमें तो लॉन्ग टर्म हमें के रास्ते कैसे एक बनाने पॉलिसी हैं। एक दिन बदलती है, दूसरे दिन दूसरी पॉलिसी आ एक जाती है। रोड एक दिन बनता है और दूसरे दिन नया रोड बनना शुरू हो जाता है। एक यूनिवर्सिटी रोड पूरा अभी बना और अब ये नई लाइन बन रही है तो पूरा उसको तोड़ के दोबारा खड़े में, तो ये नहीं होना चाहिए। आपको तो पता होना चाहिए कि हमें 10 साल में, 5 साल में कहाँ जाना है, 10 साल में कहाँ जाना है, 20 साल में। हमें पानी की क्या रिक्वायरमेंट है, हमें सीवरेज को कैसे निकालना है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाना है, लोगों को हेल्थ कैसे देनी है, सिक्योरिटीज़ कैसे देनी है, ये सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं। कब तक ये सेल्फ लोग अपने तरीके से जीते रहेंगे। मोहसिन भाई ओवरसीज बड़ा परेशान है, वो डर रहा है, उसके पास सरमाया है, वो कहता है मैं अपने मुल्क को दूँ, अपनी प्रॉपर्टी बनाऊँ यहाँ पर, मगर इतने चीट हैं, इतने फ्रॉड्स हैं, इतने दो नंबरियाँ हैं, बड़ी-बड़ी प्रोजेक्ट के अंदर भी दो नंबरियाँ नज़र आ जाती हैं, वो परेशान है, उसका एतमाद क्यों नहीं बहाल हो रहा? कल 2 दिन पहले भी एक वीडियो वायरल हुई, फिर हर हफ्ते, हर महीने के अंदर कहीं न कहीं एक वीडियो इस तरह की आ रही होती है, लोग फाइलें लेके हाथों में पड़े, इन मसाइल ये कहीं न कहीं अफेक्ट कर रहा है इंडस्ट्री को, इसको किस तरह देखेंगे? कोई एक विंडो बनानी चाहिए कि भाई यहाँ से पता चलेगा कौन-सी बिल्डिंग, कोई आबाद अपने पास कोई ऐसी विंडो बना ले कि भाई आबाद जिसको स्टैम्प करके देगा उसको पहले देखे, तो आवाम पहले आबाद से रुजू करे, और यहाँ से हमें मिल रही हो, कोई आप अपनी वेबसाइट पे लॉन्च कर दें कि भाई यहाँ-यहाँ है। तो ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी का एतमाद भी बहाल अब नहीं हो रहा, वो भी मसले में है, वो भी डर रहा है अब कि भाई लूँगा, पता चलेगा 2 लोगों के नाम है वो ज़मीन। बिल्कुल, आपका ये कहना सही है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी पूरी दुनिया में टाइटल की वजह से प्रॉब्लम होता है। टाइटल जो होता है वो गवर्नमेंट का काम है कि अगर किसी को आपको टाइटल दिया है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है। तो यहाँ पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट लेती नहीं, आपके पास भी टाइटल है, मुझे भी कोई टाइटल दे देता है और तीसरा ये भी कौन लेके दे आ देता है? जाता है। ये गवर्नमेंट के इदारे हैं। ये एक डीसी ऑफ़िस में एक मुख्तियारकार है, एक आपका एसी है, एक डीसी है, एक असिस्टेंट कमिश्नर। इससे पहले जो सिस्टम था ये डीसी का, एक एसी के पास सारा कंट्रोल होता था। जब से ये सिस्टम जो टाउन बने और चीज़ें हुई उसके बाद रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट होगा, रिकॉर्ड को उन्होंने तबाह कर दिया। रिकॉर्ड कंप्यूटराइज़ होना चाहिए, डिजिटलाइज़ेशन है पूरी दुनिया में। ऐसा थोड़ी है कि इंडिविजुअल है, पूरी दुनिया खाते में क्यों सैटेलाइट है। हाँ, आपको एक गूगल कोई भी एड्रेस पे ले जाता है तो आपका हर एड्रेस रिकॉर्डेड है। हाँ। तो आप उन्हीं चीज़ों से मदद ले लें, हम अपना रिकॉर्ड कंप्यूटराइज़ नहीं कर सकते, हमारी अभी तक चीज़ें कंप्यूटराइज़्ड कोई डाटा रिकॉर्ड नहीं है, जो कागज़े खाते ऐसे ही चल रहे हैं, किसी एक जगह फाइल में बंद। 101% सारी चीज़ें ऐसे ही चल रही है, कोई डिजिटलाइज़ेशन नहीं है, ना करेंगे, जिस अगर कर देंगे तो सब चीज़ें सिस्टम बेहतर हो जाएगा, और खुद ही इदारा खुद ही कर देता है, खुद नहीं करना चाहिए इदारों को, बाहर से आउटसोर्स कोई और करेगा, जो रिस्पॉन्सिबल होगा, अगर इदारा करेगा तो सब 2 नंबर, 1 नंबर एक ही साथ चला देगा, तो खुदारा इन चीज़ों को बेहतरी की तरफ लाए, ये मुल्क के लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपके जितने लोग हैं इनके लिए मैं इम्पोर्टेंट क्यों है। कह रहा हूँ और यहाँ पे क्यों गुफ्तगू कर रहा हूँ, क्यों इसको इतनी जो है अहमियत दी जा रही है, मैं इस वजह से इन्हीं के मुँह से जान लेते हैं, इस एक सनत के अंदर कितनी सनतें जुड़ती हैं, ज़रा बताएँ? तो कितना बड़ा सरमाया देखिए, रोल कर रहा होता है, ज़रा बताएँ? टोटल हम 70 इंडस्ट्रीज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लगती हैं। 45 टू 50 इंडस्ट्रीज डायरेक्टली होती है, स्टील, ग्लास, टाइल्स की फैक्ट्री, कीलों की, लॉक की,
बल्ब की, इलेक्ट्रिक वायर की, ये सारी 40 इंडस्ट्रीज डायरेक्ट लगती है। लेकिन जब घर बनता है तो एयर कंडीशन लगते हैं, जब घर बनता है तो आपके स्विचेस लगते हैं, कर्टेन लगते हैं, फर्नीचर आता है, कारपेट्स आते हैं, किचन बनते हैं, तो इतने सारे इंडस्ट्रीज आपकी मिलती है और ये इंडस्ट्री चलती है तो ये सब इंडस्ट्रीज एक्टिवेट होती है। तो मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा कहीं दुनिया में किसी कंट्री में रिसेशन होता है तो इस इंडस्ट्री को बूम किया जाता है ताकि वो एक्टिविटी हो, लोगों को रोजगार मिले। शॉर्टफॉल ऑफ हाउसिंग हमारे यहाँ, कच्ची आबादियाँ 50% हो गई है, इसलिए ओ कि माय गॉड, हमने बहुत बुरा हाल है उस कोई सेक्टर का। चीज़ दी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर सहूलियात हो भी गया। नहीं दे रहे उधर, और उनको बिल्कुल ऐसा किया हुआ है, बिल्कुल आउट, और उसका असर बिल्कुल कि मतलब एक मैं तो ये तसव्वुर करता हूँ, ये कच्ची आबादी है, उसकी ज़मीन वही सेम सहूलियात, और यहाँ पर भी उसकी वैल्यू अलग। मतलब आपने 2 सोसाइटियों को बिल्कुल मिला दिया है, मतलब एक अजीब व गरीब, हर एक पक्की आबादी के साथ एक कच्ची आबादी, अब ऐसा तसव्वुर किया जा रहा है, तो ये किस तरह कहाँ कहाँ पहुँचेगा कराची? पूरी दुनिया में जहाँ भी कच्ची आबादियाँ थी उनको ख़त्म किया और उनको उन्होंने रीडिज़ाइन और रीप्लान किया। और मेरा ख़्याल है कि इसके बगैर कोई वो नहीं है। अगर आप ये कच्ची आबादियाँ किसी मुल्क में 60% हो जाती हैं तो इसका मतलब है कि वो मुल्क तबाही के उस पे आ जाता है, लूट मार और छीना झपटी हो जाएगी, जो हमारे यहाँ हो रही है। 55% हो गई है कच्ची आबादियाँ। तो हमें इस वक्त ज़रूरत है कि हम इन चीज़ों पे गौर करें, इनको रीप्लान करें और उनको कोई स्ट्रक्चर ऐसा दें कि उन लोगों को वहीं रहते हुए हम वो सारी सहूलत दे सकें, ताकि वो माशरे में बैलेंस हो। बिलो द लेवल रहते हैं, उनके मामलात ही डिफरेंट है और वो भी हर परेशानी में चीज़ हैं। करने के लिए तैयार है। वो उनके बच्चे, इसलिए कि उनको जब चीज़ें नहीं मिलेगी, सिक्योरिटीज़ नहीं मिलेगी, तो वो अगेंस्ट आपकी कंट्री के वो मोहब्बत नहीं करते, उनको नफ़रत है। अच्छा सर, ये भी तो बताएँ ना कि एक सवाल ये भी उठता है कि ये वो कारोबार है रियल एस्टेट का, इसने लोगों को फर्श से अर्श पे पहुँचाया, ठीक है? फिर लोग करते हैं यार, इतना कमाते हैं ये बिल्डर्स, इतना करते हैं, फिर भी शिकायतें और शोर-शराबा करते हैं, इसका कोई जवाब है आपके पास? ये मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं। बिल्कुल सही है। देखें, जो भी कारोबार करते हैं, कहीं भी कोई कारोबार करता है, कोई इंडस्ट्री लेके चल रहा है, तो इंडस्ट्री वाले भी वही हैं, जो कारोबार कर रहे थे। एक टाइम होता है, देखो टाइम जब बूम चल रहा होता है, सबसे एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती फ़ायदा है, कब मिला इस जब आपको इंडस्ट्री को? मिलता है। जब किस भी टाइम आता है, जो प्राइस जब आपकी हाई होती है, जब डिमांड आपकी क्रिएट होती है, जब इकोनॉमी आपकी सेटल चल रही होती है, जब इकोनॉमी चलेगी, तो आप घर लेंगे। घर हुँ। आएगा सेकंड फेज़ में। पहले फेज़ में आप अपने बच्चों का अपना गुज़ारा देखेंगे। जब एक्सेस मनी आएगी तो आप सोचेंगे मैं अपने लिए घर ले मैं लूँ। आखिरी कमेंट की तरफ जा रहा हूँ। मुझे बस ये बताइएगा, एक इकोनॉमिस्ट हैं और एक माहिर मईशत है, वो कहते हैं कि सिर्फ़ रियल एस्टेट के ऊपर तवज्जो दे दी जाए तो पाकिस्तान का आधे से ज़्यादा कर्ज़ा जो है वो ख़त्म हो सकता है। इसमें कितनी सदाकत है और इसका रोड प्लान क्या है? देखिए, रियल एस्टेट वो है, अगर उसको सही टाइम पे, सही मौकों पे, सही टारगेट किया जाए। हमारे पास इतनी लैंड्स है सब गवर्नमेंट के इदारों के पास, कि अगर हम उसी में से बेच के, स्टील मिल के पास 10,000 एकड़ ज़मीन है। ऐसे रेलवे के पास हज़ारों एकड़ ज़मीन है। ऐसे ही आपके वापडा के पास, हर इदारों को अपनी सोसाइटियाँ बना के वो अपने ही खा रहे हैं, लोग उसको वो यूटिलाइज़ करें, उसको बाकायदा ऑक्शन करें और वो पैसे हम अपने कर्ज़ उतार दें। हुँ, कोई ऐसी हमें स्कीम बनानी चाहिए ताकि हमारे लोन्स ख़त्म हो, हमारे इंटरेस्ट तो देखें। हुँ। हमारी डेवलपमेंट कुछ नहीं है, 6,000 करोड़ रुपए के, 6,000 अरब रुपए के इंटरेस्ट भरनी है गवर्नमेंटों ने, तो ये कहाँ से भरेंगे इतने-इतने? तो ये सब उसी में चले जाते हैं, सूदों में चले जाते हैं और लोगों के डेवलपमेंट में नहीं लगते। हमारे एजुकेशन, हमारे हेल्थ में जो पैसे लगने चाहिए वो नहीं लगते। जब तक हम अपनी एजुकेशन बेहतर नहीं करेंगे, हम उनको सिक्योरिटी और सही लेवल तक चीज़ें नहीं देंगे एक इंसान को, जब तक वो कैसे मोहब्बत करेगा अपने वतन से? मोहसिन भाई, एक आखिरी सवाल भी ले लें मुझे, डेवलपमेंट की सनत से आप ताल्लुक़ रखते हैं। एक आम आदमी कहता है नहीं जाओ जर्मनी, नहीं जाओ कनाडा, नहीं जाओ अमेरिका, नहीं कोई और बाहर के मुल्क की बात करो, इसी शहर में आओ, बहरिया टाउन के अंदर डेवलपमेंट देखो, उसकी रोडें, इसकी सड़कें और उसकी चीज़ें को देखो, और शहर के अंदर आ जाओ। एक वाज़ेह फ़र्क मिलेगा। सरकार उससे ज़्यादा पैसे टैक्सेस की मद में ले रही है, सारी चीज़ें उसके पास ज़्यादा खजाना लग रहा है, उसके संभालने के लिए ज़्यादा इंतज़ामिया, उससे भी ज़्यादा पैसे लग रहे हैं उसको संभालने के लिए। यहाँ पर सूरत-ए-हाल कुछ और है, यहाँ पर सूरत-ए-हाल कुछ और है, नाज़रीन इस बात की तस्दीक भी करेंगे। क्या हाँ मसला आ रहा है? मेरे ख़्याल से जो पैसे होते हैं वो पूरे लगते नहीं हैं। क्योंकि बहरिया टाउन में भी इंतज़ामिया वही यहीं के लोग हैं ना, देख, कोई बाहर की दुनिया एलियन तो प्राइवेट आए हुए सेक्टर नहीं है हैं। ना, प्राइवेट सेक्टर अपनी बिल्डिंग बनाता है,
اور कंपेयर कर ले गवर्नमेंट सेक्टर बनाता है। वो गवर्नमेंट सेक्टर जब बनाता है तो उसकी कॉस्ट, हम अगर कोई 6,000 रुपये बनाते तो वो 12,000 रुपये कॉस्ट बनाता है, और वो पैसे सारे सिस्टम इनके जो बने हुए हैं उसी में डिवाइड हो जाते हैं। देखिए चीज़ें लगती नहीं है, रोड बनता है, अगर रोड पे 100% पैसे लग जाए तो रोड की क्वालिटी इज डिफरेंट। अगर रोड पे ही 40% पैसे लगेंगे और 60% सब मिलके खा जाएंगे तो कैसे होगा? तो ये सब चीज़ें कोई छुपी भी तो नहीं है, ये सबके सामने है। आप एक कॉन्ट्रैक्ट क्या, एक आप अपना रजिस्ट्री जाके नहीं करा सकते, जो आपका राइट है वो उस कराने के लिए जाएंगे तो 2 लाख और 3 लाख रुपए आफ्टर द गवर्नमेंट टैक्सेस देने हैं आपको। अंडर टेबल हर चीज़ ऐसी है। तो ये तो कोई ऐसी छुपी हुई चीज़ नहीं है। आप एक एफआईआर तो नहीं कटा सकते जाके यार, कहीं मतलब क्या है? आप और हम सब चीज़ें जानते हैं और हमारे सामने है कि क्या हो जाता है। एक बंदा मर जाता है तो उसकी पोस्टमार्टम के लिए क्या होता है, हम तो उसको भी नहीं, मुर्दे को भी नहीं छोड़ते। तो ये सिस्टम को बेहतर करने की ज़रूरत है, और जब तक आप डिजिटलाइजेशन नहीं करेंगे, ऑनलाइन सिस्टम क्रिएट नहीं करेंगे, लोगों के बीच में जो गैप है उसको ख़त्म नहीं करेंगे, लोग समझते हैं कि मैं सीट पे बैठा हूँ, मैं साइन करूँगा तो इसका अप्रूवल होगा, तो वो उसके पैसे कहता है कि ये मेरा राइट है, इसलिए कि तुम करोड़ों रुपए कमाओगे तो मुझे नहीं दोगे। तो ये सारी चीज़ों को हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है। लोगों को एक जो मजमा है इसको एक कौम की शक्ल में लाने की ज़रूरत है, ताकि हर आदमी देखे जब बुरा वक़्त आता है इस कौम में तो सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, वो ज़लज़ला हो, ये तो भी कोई बुरा वक्त है इस वक्त भी। इस वक़्त जो बुरा वक़्त है उसमें मैं समझ रहा हूँ कि कोई सपोर्ट नहीं आ रही, लोग भाग रहे हैं। हमें इस वक़्त हमें लोगों को रोकना है, भारत ज़रूर जाए, काम करे, वहाँ से हमारे मुल्क में पैसे भेजे, लेकिन खुदारा हमें सिक्योर करना है, हमें उनको डराना नहीं है, हमें उनके पीछे एफआईए को, करप्शन एजेंसियों को नहीं लगाना, ना कि इन हालात में सबको सर्वाइवल देनी है, ताकि ये वक़्त गुज़र जाए, अच्छा वक़्त आएगा तो सब चीज़ें बेहतर हो जाएगी। तो ये है मैं समझता हूँ। और आपने जैसे कहा कि आखिरी नए कोई में वो दे दें नए सजेशन। मेयर आए हमारे, और हमें सबको उम्मीद है कि इस शहर का से है मुर्तज़ा वहाब, और इस शहर के लिए उनको मौका मिला है, तो ऐसा काम करें, खुदारा ऐसी चीज़ें डिज़ाइन करें ताकि ये शहर वाले ज़िंदगी भर आपको दुआ दे सके। आप इनको ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर दें, इनको पानी के जो इशू 800 एमजेडी आ रहा है, 20 साल हो गए, 800 एमजेडी में 200 चोरी हो जाता है। खुदारा इसको 1600 एमजेडी वाटर, चीज़ें हुई भी हैं उसको फॉलो कर लें। आप इंफ्रास्ट्रक्चर कर दें, आप हेल्थ कर दें, आप रोडों को देख लें, आप ये इल्लीगल कंस्ट्रक्शन बंद करा दें, आप रिकॉर्ड ऑफ राइट सारे सही करा दें। तो ये एक मौका है इस शहर को, मैं समझता हूँ कि इन सब के लिए ये वक्त है कि अब खुदारा इस शहर को 4-5 साल दे दो और एक पॉलिसी बना लो कि हमने इसको कुछ बनाना है। नाज़रीन, पॉलिसी बना दो, कोई बड़ी बात, कोई बड़ी डिमांड, कोई ऐसी चीज़ मुझे नहीं लग रही कि जो नामुमकिन हो, और ऐसा जो है वो दावा किया जा रहा हो या ऐसी कोई चीज़ मांगी जा रही हो जिसके अंदर कोई अलग से चीज़ करनी पड़े हुकूमत को। कुछ नहीं है, डिजिटलाइज कर दो, एक गैप जो है वो ख़त्म कर दो, ये मांगा जा रहा है। सेहत के मसाइल हैं, बुनियादी जो सहूलियात हैं वो दे दो, और इस ताजिर और इस कम्युनिटी के लोगों की तरफ एक तरफ संजीदगी से देखना शुरू कर दो। ये तो बहुत ही मामूली और बुनियादी चीज़ें हैं जिसका मुतालबा और जिसकी अपील जो है वो की जा रही थी। मोहसिन शक़ानी साहब मेरे साथ मौजूद थे। अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने इस हवाले से अगर आप समझते हैं कि गुफ्तगू में और बेहतरी किस तरह लाई जाती है, और कौन-कौन से सवाल इसके अंदर ऐड करने चाहिए, हम दीगर लोगों से भी मुलाकातें और बातचीत कर रहे हैं, उसमें हमें कमेंट में बताइएगा। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आप देख रहे थे पाकिस्तान डिजिटल। शुक्रिया।